الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کسانوں کے قومی دن پر اپنے تمام کاشتکار بھائیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نائٹروجن کی دانشمندانہ استعمال پہ ہم کریں گے کہ کھادوں کو کس طرح استعمال کیا جائے کہ ہماری فصلوں کی پیداوار جو ہے وہ اچھی ہو اور بہتر ہو۔ اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گی عبدالرحمن کو صاحب کو کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گی فہد صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دعا دینے والا، مانگتا ہے اس سے جو صدق دل سے، وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، بیماری میں اس کو نبی ایوب نے پکارا، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دعا دینے والا، نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دعا دینے والا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آج جیسا کہ کسانوں کے قومی دن پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ نائٹروجن کو کیسے ہم دانشمندانہ طریقے سے، متناسب طریقے سے استعمال کریں کہ جس سے ہماری فصل جو ہے وہ اچھی پیداوار دے، فصل جو ہے وہ ہری بھری رہے، اس کی صحت اچھی رہے۔ اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی ہی زبان میں آپ کو جو ہے وہ ہمارے رانا محمد خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو خوش آمدید کہیں، اور اس مقابلے کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالوکیل صاحب
सदर पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे गांव का इंतखाब किया कि यहाँ पर किसानों को एक मॉडल विलेज बनाया जाए और जो जदीद किस्म की मशीनरी है उससे भी किसानों को रोशनास कराया जाए। और वो जिस तरह आपके होता है कि आप तेल डालकर उसको मशीनरी ले जाते हैं और वहाँ एक जगह मखसूस होगी, वहाँ पर जदीद किस्म की मशीनरी एक मकाम पर मौजूद होगी जिसमें आप सिर्फ अपने तेल का ख़र्चा करके वो वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट यूके के तावन से है और जो डॉक्टर साहब ने हमारे गाँव का इंतखाब किया है, हम इनके मशहूर हैं। उनके साथ डॉक्टर सनाउल्लाह साहब हैं जो भी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए, और जितने भी मेरे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हैं अपने कीमती वक्त से, हम सबको खुशामदीद कहते हैं। असल में जो मकसद है कि काश्तकार, आपके इल्म में है कि हर चीज़ को अल्लाह पैदा करता है, लेकिन उसका जो वसीला बनता है, इस खेत में जो बीज उगाता है वो अल्लाह उगाता है, लेकिन उसमें कोशिश और कावश किसान करता है। और उस खेती से जो अल्लाह ताला बरकत डालता है उससे आप रोटी भी खाते हैं, उससे आप सब्ज़ियां भी हासिल करते हैं, उसी चारे से आप जानवरों को डालकर दूध भी हासिल करते हैं। तो यानी हर खाने पीने वाली चीज़ जो आपको मुहैया करता है किसान, इतना अच्छा पेशा है कि ये समझिए कि ये आप इसका नेमुल बदल नहीं है कोई। तो ये डॉक्टर साहब की नवाजिश है कि इनका हमारे गांव का इंतखाब करना, ताकि इन्होंने एक मरतबा हमें आगाह किया कि हम इस तरह एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ताकि उस गांव को मॉडल विलेज बनाया जाए, वहाँ पर हर किस्म की जदीद मशीनरी हो और वहाँ जो खादों का इस्तेमाल है उसके बारे में लोगों को बताया जाए, कि ज़मीन का तज्ज़िया किया जाए कि आपकी मिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत है, आया उसको किस खाद की ज़रूरत है। अगर आप कुदरती तैयार करना चाहते हैं खाद, वो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह यानी जो भी किसान के मसाइल हैं उनके हल के लिए जो कोशिश और कावश होगी, इसमें से 100 फार्मर जो है वो इन्होंने एक सर्वे किया था यहाँ पर हमारे गांव में, उसमें से 40 लोग सिलेक्ट किए थे। तो मज़ीद इसके बारे में डॉक्टर साहब भी बताएंगे और बाकी साथी बताएंगे। तो मैंने जो अपना मोटा मोटा है वो आपको बता दिया है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि राणा साहब ने कहा है कि किसान पेशा जो है वो बहुत ही अच्छा, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही बात की है कि जैसे कि हमने पढ़ते भी आए, हमने सुना भी है कि ज़राअत जो है वो हमारा पैगंबरी पेशा है। इसको हमारे पैगंबरों ने, हमारे नबियों ने भी खेती बाड़ी की है, उन्होंने भी फसलें उगाई हैं। तो इसको तो दिल से और अच्छी तरह हिफाजत से करना चाहिए कि हमारी फसलें जो अच्छी पैदावार दें। लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारे मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमारे पहले की निस्बत अब हमारा मौसम जो है वो बहुत बदल गया है। पहले हमारे दिसंबर में कड़ी सर्दी पड़ती थी, अब जो वो दिसंबर से सर्दी किधर चली गई है, जनवरी में चली गई है। तो ये जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इनका हमारी ज़राअत पे भी बहुत गहरा असर है, हमारी फसलों पे भी असर है। जैसे जैसे हमारे मौसम बदल रहे हैं वैसे वैसे हमें अपनी ज़राअत पे जो हम पहले जो हम तरीके अपनाते थे उनको भी बदलने की ज़रूरत है। इसी बात पे रोशनी डालने के लिए, इसी की वजाहत करने के लिए जो है मैं सर सनाउल्लाह साहब को दावत दूँगी तो वो हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें। जी सर। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राना मोहम्मद ख़ान साहब का और बाकी अहबाब का जिन्होंने हमारी ये जो बैठक है इसको मुमकिन बनाया और आप लोगों से मिलने का और बात करने का मौका दिया। तो हम उसके लिए बेहद मशहूर हैं सब लोगों के। तो ये हमारी जो आज की मीटिंग है ये उस तरह रूटीन वाली मीटिंग नहीं है जिस तरह ज़राअत अफीसर आते हैं आपको बता देते हैं कि आपने 2 बोरियां DAP डालनी है जी, 2 यूरिया डालनी है और ये कर देना, जो रटी रटाई बातें हैं। हमारा मकसद वो उस तरह नहीं है। ये बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस तरह राना साहब ने आपको बताया कि ये जो यूके की फंडिंग है, इसमें हमारे जो ये पूरा एरिया है जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं,
इसमें 8 मुल्क हैं। बाकी तफसील तो आपको डॉक्टर अब्दुल वकील साहब सारी बताएंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो उन 8 ममालिक में सेम तरह की सारी जो ज़राअत की तरीक़ाकार है, जो प्रैक्टिस होगी, वो सब में एक तरह की होगी। और हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स की जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पर हमारा फोकस जो है वो नाइट्रोजन खादों पर है, जिसमें आपको पता है कि यूरिया भी नाइट्रोजन खाद है और उसके साथ DAP में थोड़ी सी नाइट्रोजन होती है, या हमारी नाइट्रोफास है या कैन है दोबारा जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी जो खादें नाइट्रोजन वाली हैं, इसकी वजह से जो हमें मसाइल आ रहे हैं और जो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम इतनी महंगी खादें, आपको पता है कि आजकल खाद मिलना वैसे मुश्किल हो रही है। इतने पैसे लगा कर अगर हम खाद डालते भी हैं तो उसका अगर हमारी फसलों को फ़ायदा नहीं होता है तो वो सारा नुकसान ही है जो कि हमें आखिर में होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम जो नाइट्रोजन खाद है उस बाकी खादों के साथ साथ उसके इस्तेमाल को हमने बेहतर करना है और जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके हमने इसके नुकसानात को कम करना है। तो उसके लिए जो हमारे पाकिस्तान से 2 गांव हमने सेलेक्ट किए हैं, उसमें एक गांव जो है वो आपका है। यहाँ पर साफ ज़ाहिर है आपको हम ये नहीं है कि एक तकरीर होगी, मीटिंग होगी और ख़त्म हो जाएगा। बाकायदा जो फार्मर सेलेक्ट होंगे उनके साथ हमारा थ्रू आउट रब्ता रहेगा। उनकी फसल की बुवाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक जो सारे अवामिल होंगे उसमें हमारा मतलब साथ शामिल रहेगा। और उसको जो जो मुख्तलिफ हमारे तरीक़ाकार होगा 8 मुल्कों में, जिसमें इंडिया भी है, बाकी जो हमारे साउथ एशिया के मुल्क हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो सब ममालिक में एक किस्म की जो तरीक़ाकार है वो इस्तेमाल होगा। और फिर हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे बेहतर तरीक़ाकार है उसको हम राइज करें जो कि आपके इलाके के हिसाब से और आपकी फसलों के हिसाब से बेहतर है। तो उसमें असल प्रॉब्लम जो आ रहा है कि जब हम खादें डालते हैं या तो हम वो प्रॉपर डालते नहीं, या फिर हमें जो मिल रही होती मजबूरन किसान जो है वही ले के डाल देता है। बेशक अब यूरिया अगर उसको DAP से 3 गुना सस्ती मिल रही है तो वो बजाय DAP डालने के कहेगा कि 2 बोरियाँ हम यूरिया डाल दें। तो उसका नुकसान ये होता है कि हम शायद फसल को 1 बोरी चाहिए होगी तो बाकी जो हमारी जाए जाती है वो सिर्फ ज़ाय नहीं जा रही होती। असल में मसला ये आता है कि जब हम खाद का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है ये जब ज़मीन से उड़ के हवा में जाती है तो ये हमारे जो गैसें हैं, ये जहरीली गैसें हमारे मौसमियाती तब्दीलियों का भी बायस बन रही है। तो आपने गौर किया होगा कि पिछले 20-30 साल में किस तरह तब्दीली आई है और हमारे जो मौसम है वो किस तरह तब्दील हुए हैं और सख्त हो गए हैं। गर्मियाँ हमारी जो है वो ज़्यादा हो गई हैं और ज़्यादा शदीद हो गई हैं। टेम्परेचर हमारा जो है दर्जा हरारत वो बढ़ रहा है और सर्दियाँ जो है वो सुकड़ गई हैं, लेकिन वो भी शदीद होती हैं जितना टाइम भी होती है। और हमारा जो बारिशों का मसला है, आपको पता है कि पहले ये होता था कि सर्दियों में हमारे पूरे वो हफ्ते हफ्ते की बारिशें होती थी, जिस झड़ियाँ जिसको हम झड़ी कहते थे। लेकिन अब हमारी जो पूरी वीट की फसल होती है वो तकरीबन खुश्क गुजर जाती हैं। जब बारिशें होती तो इतनी तूफ़ानी होती कि आपने सुना होगा कराची में तबाही हो गई। पिछले साल हमारे इस्लामाबाद में गाड़ियाँ समेत सारा कुछ जो है वो बारिशों की वजह से, वो तूफ़ानों की वजह से निकल गया। तो ये सारे मसाइल जो आते हैं उसमें हमारे जो ज़राअत है उसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। एक तो जो हमारी गाड़ियाँ ट्रैफिक होती है या इंडस्ट्री का धुआं होता है उसका तो अपना रोल है ही है, लेकिन जो हमारे हम जो खेती बाड़ी करते हैं तो इसमें भी जब हम हल चलाते हैं, जब खादें डालते हैं, तो उसमें से जो जहरीली गैसें होती हैं वो भी बहुत सारा नुकसान देती हैं, जो कि हमारी फसल को भी नुकसान है और हमारे पैसे भी ज़ाय होते हैं अगर वो फसल को खाद नहीं मिलती है। तो इस प्रोजेक्ट में जो होगा हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम खाद की कितनी मुनासिब मिकदार हो, किस टाइम पे डालें और किस तरीके से डालें। तो उसको सिर्फ हम ज़बानी कलामी बातें नहीं करेंगे, उसमें बाकायदा करके दिखाया जाएगा, वीडियो दिखाई जाएंगी, आप लोगों से मुलाकातें होंगी। अभी ये जब हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमारे सिलेक्टेड फार्मर होंगे इस गांव के, उनको हम सर्वे करेंगे, उनकी जो ज़रूरियात होगी वो पूछी जाएंगी और उसके हिसाब से उनको सारी जो चीज़ें हैं वो मुहैया की जाएंगी, ताकि वो बेहतरीन तरीके से जो मसाइल आ रहे हैं आजकल खाद के या बाकी, उनको आसानी से वो टैकल कर सकें। तो वो हमारा जो मेन मकसद है, एक तो हमने अपने नुकसान को कम करना है
और जो हमारे तरीक़ा कार की वजह से हमारे मौसम ख़राब हो रहे हैं उनको भी हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं, जिसमें हम ये गैसेस के बारे में भी काम करेंगे, फसलों के बारे में भी है, और फार्मर्स के साथ हमारा डायरेक्ट कंटेक्ट भी है। तो ये आई होप कि इंशाल्लाह जब शुरू तो हमने सर्वे 2 साल पहले किया था, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से बाकी ममालिक में ज़्यादा मसाइल होने की वजह से वो काम रुक गया था। हमारा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गांव में कोई इतना बड़ा मसला नहीं हुआ, तो इस वजह से अब ये दोबारा काम शुरू हो रहा है। तो इंशाल्लाह अब सर्वे के बाद जो है हम बाकायदा जिस तरह आपकी फसलें होती हैं उसके हिसाब से जो इसमें हम सारे जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे इनपुट्स हैं या जो चीज़ें हम डालते हैं किस तरीके से डालते हैं, तो वो हम साथ आपको लेके चलेंगे। और उम्मीद है कि आपको देख कर फिर जो इर्द गिर्द के किसान हैं वो भी उसको अडाप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में जो फूड का जो हमारी खुराक का मसाइल बने हुए हैं, जो शार्टेज हो रही है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना हिस्सा हम उसमें डाल सकते हैं उसमें डालें, और कोशिश करें कि जो हमारा फ़र्ज़ है उसको हम पूरा करें। बाकी इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। तो इसलिए उम्मीद है कि आज आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया नहीं होगा, और हम इसको ये नहीं है कि आज मीटिंग करेंगे और ये बात ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी हमारे साथ आपका तावन है अगर इंशाल्लाह रहा तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और इसको मिसाली गाँव इंशाल्लाह जिस तरह राना साहब ने फरमाया हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह फिर जब ये बात होती है तो फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, जो सवालात होंगे, उनके जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक हमारे किसान भाइयों को बताया। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी और ये इन पर अमल भी करेंगे और अपनी फसलों की हिफाजत भी अच्छे से करेंगे। आगे हम जब आज का हमारा प्रोग्राम जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रोजन पर है कि हमने नाइट्रोजन को किस तरह बेहतर इस्तेमाल करना है कि वो हमारी फसलों की पैदावार में जो है वो अहम किरदार अदा करे। फसलों में नाइट्रोजन की अहमियत क्या है और नाइट्रोजन के अहम सोर्स कौन से हैं, कौन सी खादें हैं जो नाइट्रोजन का सोर्स है जिनको हम अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जो तफसील से वो हमारे डॉक्टर वकील साहब बताएंगे। सर प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियात में से। यकीनन हम सब लोग यहाँ पे किसी अच्छाई के लिए बैठे हुए हैं, और ये जब से भी ये दुनिया कायम हुई है अच्छाई और बुराई जो है वो अपने पूरे जोबन से वो चलती है। कुछ लोग जो हैं वो अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, लेकिन ये साथ साथ है कभी भी ये ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता कि सारे लोग अच्छे हो जाएं, और ये भी नहीं होगा कि सारे लोग बुरे हो जाएं। इसी तरह जो फार्मर्स के मसाइल हैं किसानों के, हम भी छोटे जब होते थे उस वक्त से सुनते आए हैं कि मसाइल हैं फार्मर्स के। फिर अच्छा दौर भी आता है फार्मर्स का, फिर उसमें मसाइल आ जाते हैं। तो ये जो किसान है बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसका कुदरत के साथ ताल्लुक है, और जो कुदरत है उसमें हेर फेर होता रहता है, और जो कुदरत के साथ साथ चलता है वो अल्लाह ताला उसकी मदद भी करते हैं, वो एक इबादत के ज़िम्मे में भी आता है। और जो खेती बाड़ी है ये यकीनन एक इबादत है, क्योंकि आप लोग वो काम कर रहे हैं जिसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ही रिज़्क़ पहुँचाने वाला है सबको। और जितने भी किसान हैं या हम भी उसमें शामिल हैं किसी हद तक कि हम लोगों को रिज़्क़ पहुँचाने के लिए हम मदद कर रहे हैं, तो हम भी यकीनन अल्लाह ताला की जो ये एक नेमत है रिज़्क़ पहुँचाने, उसमें हम उसके साथ बराबर कुछ नहीं। बाकी ये दो चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। एक तो ये है कि जो मतवाज़न खाते हैं उसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। अगरचे बहुत सारे फार्मर जो हैं इस बात को बार बार सुन भी चुके हैं और कुछ लोग इसके ऊपर अमल भी करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से समझते हुए अमल कर भी नहीं सकते। कि हम आपको कहते हैं अगर कि आप यहाँ जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वाले हैं यकीनन वो भी आपको विज़िट करते रहते हैं, वो भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहते हैं। बात का जो है कि हम आपको कहते हैं कि आप नाइट्रोजन और फास्फोरस डालें, पोटाशियम डालें,
वो खादें मिलती नहीं हैं, बाज़ औक़ात मिलती हैं तो महंगी मिलती हैं, बाज़ औक़ात अगर महंगी भी नहीं है तो फार्मर जो है वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो उनको ख़रीद सके। लेकिन उससे ये नहीं होना चाहिए कि आपको अगर एक खाद नहीं मिल रही तो आप दूसरी खाद ज़्यादा डालें, क्योंकि हर चीज़ का अपना असर है, हर खाद का अपना असर है। और चूँकि जैसे जैसे आप देखेंगे ज़मीनों में से जो फसलें उग रही हैं, पहले होता था कि एक साल में एक फसल भी होती थी, अगर आज से आप कोई 40-50 साल पहले चले जाएं, लेकिन अब एक साल में 3-3 फसलें भी होती हैं। आप गन्ना लगाते हैं, ये सारा साल ही उगता रहता है, तो जिसकी वजह से ज़मीनें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो खुराक है पौधों की, उसी ज़मीन से पौधों ने खुराक लेनी है। तो अगर आप उस ज़मीन को रिलैक्स नहीं करते, उसको उसमें वक्फा नहीं डालते, तो वो अपने आप को रिस्टोर नहीं करती, दोबारा वो असली हालत में नहीं आती। अब हम देखें ना, हम दिन भर काम करते हैं, रात को हम सोते हैं तो हम दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। तो अगर ज़मीन को हम वक्फा नहीं देंगे तो उससे ये होगा कि ज़मीन जो है वो अपनी जो एबिलिटी है या उसकी जो हम कहते हैं ताकत है वो बरकरार नहीं रह सकती। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हम ये नहीं कर सकते कि हम एक फसल या एक साल के लिए हम ज़मीन को खुला छोड़ दें। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी आबादी है, हमने उनको खिलाना है, हमने खुराक मुहैया करनी है। तो इसलिए हमें जो कमियाँ हो रही हैं, मतलब पहले नाइट्रोजन की कमी होती थी, फास्फोरस ठीक थी, पोटाशियम भी ठीक थी, फिर आस्ता आस्ता फास्फोरस की कमी आनी भी शुरू हो गई, फिर पोटाशियम की कमी आनी भी शुरू हो गई। उसके बाद अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक और बोरान है, उसकी भी कमी आनी शुरू हो गई है बहुत सारे इलाकों में। तो इसलिए अब ये सारी चीज़ें इनको हमें देखना पड़ेगा कि हम इनको मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम फास्फोरस की कमी है तो हम पूरी नाइट्रोजन डाल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं जी नाइट्रोजन तो हमने पूरी डाली थी, लेकिन उससे जो पैदावार है वो सही नहीं है, अब वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि नाइट्रोजन ने फास्फोरस वाला काम तो करना ही नहीं है। तो अगर आपके पास फास्फोरस की खाद नहीं है और ज़मीन में कमी है, या पोटाशियम की कमी है ज़मीन में और पोटाशियम की खाद नहीं है, तो आप नाइट्रोजन पूरी भी डालेंगे तो आपकी फसल ज़्यादा नहीं होगी, वो यकीनन कम होगी। तो इसलिए बजाय इसके कि हम 2 बोरी अगर नाइट्रोजन की हमने डालनी है और फास्फोरस हमारी कम है, पोटाशियम कम है, तो हम उस नाइट्रोजन को कम कर दें और दूसरी खाद भला थोड़ी ही डाल दें। अगर हम ज़्यादा डालेंगे, एक तो ये है कि जो पौधा है उसको कोई उसका फ़ायदा नहीं, दूसरा ये है कि उसका नुकसान है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो जितनी भी हम नाइट्रोजन डालते हैं, अगर हालात बिल्कुल ठीक हों, मौसम अच्छा हो, हमारी ज़मीन जो है उसकी ताकत ठीक हो फास्फोरस और पोटाशियम के हवाले से, फिर भी उसमें से तकरीबन आधी खाद ही पौधा ले सकता है, आधी ज़ाया हो जाता है। और अगर हमारी ज़मीन में कमी है फास्फोरस की, पोटाशियम की या माइक्रो न्यूट्रिएंट की, उस वक्त हम पूरी खाद डालते हैं तो वो 50% से भी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पौधा उसको ले ही नहीं सकता जब तक। अब आप देखें ना कि हम जो दीवार खड़ी करते हैं, इसमें ईंटें भी है, इसमें सीमेंट है, रेत है, अगर उसमें सीमेंट नहीं होगा तो आप कितनी ऊंची दीवार खड़ी कर लें, वो कभी भी मजबूत नहीं होगी, वो जो मकसद है हमारा वो हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमें खुराक है, अगर आप एक ही खुराक खाते हैं, हम कहते हैं दूध सबसे ज़्यादा मुतवाज़न खुराक है कि बच्चा अगर दूध पीता रहे तो उसकी नशो-नुमा सही होती है, लेकिन अगर बच्चा पीता रहे, जब बड़ा हो जाएगा तो वो सिर्फ दूध से उसका गुजारा नहीं हो सकता, उसको और चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो इसलिए मकसद ये है कि जितनी भी खाते हैं हम इनको मुतवाज़न इस्तेमाल करें। इसमें आपको जो रिकमेंडेशन मिलती हैं, जो आपका डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें ये है कि अगर आप सारी नहीं डाल सकते तो थोड़ी डालें, लेकिन सारी डालें। मतलब अमाउंट अगर आप पूरी नहीं डाल सकते, अगर वो 2 बोरी कह रहे हैं कि यूरिया डालें, 1 बोरी DAP डालें, 1 बोरी पोटाश डालें,
तो अब आपको फास्फोरस के पैसे नहीं है आपके पास, या वो मिल नहीं रही, या पोटाशियम आप नहीं डालना चाह रहे, तो आप कहते हैं मैं सारी यूरिया डाल देता हूँ। अब वो सारी यूरिया डालने का फ़ायदा नहीं होगा, मतलब फ़ायदा तो होगा, पूरा फ़ायदा नहीं होगा, उसमें ज़्यादा खाद जो है वो ज़ाया चली जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ही खाद को डालने की बजाय बेशक आप थोड़ी डालें, लेकिन सारी खादें डालें जिनकी ज़रूरत आप समझते हैं कि आपकी ज़मीन में है। तो बाकी इसकी ज़रूरत किस तरह ये है कि साइल का एनालिसिस अगर आप कोशिश करें तो आपको अच्छा उसका एनालिसिस मिल सकता है। तो बहुत सारी मतलब पंजाब गवर्नमेंट की भी हैं लैब, फिर प्राइवेट कंपनियां हैं, FFC है, एंग्रो वाले, वो भी करते हैं। अगर ज़िम्मेदार जो है वो कोशिश करे तो उसको वो मिल सकता है एनालिसिस, और उसके मुताबिक आप डालें। ये इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं होता, सिर्फ आपकी लगन चाहिए कि आप पीछे किसी के पड़ जाएं ऐसे कहीं हमें करवा। तो इसलिए खादों का जो है वो मुतवाज़न इस्तेमाल ही हमारा हल है। लेकिन अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखें तो अब जो हमारा किसान है वो क्या क्या डाले, वो यूरिया भी डाले, वो उसमें फास्फोरस भी डाले, पोटाशियम भी डाले, फिर हम कह रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालें। आज 2 की कमी है, कल को और 2 की कमी हो जाएगी। तो इसके साथ जो इस वक्त दुनिया में जिसका रवाज हो रहा है वो ये है कि हम जितना अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर डाल सकें वो ही फ़ायदेमंद। कि एक तो जो है कि जो फसलों से की बाकियात हैं हम उनको ज़मीन के अंदर डालें, जिस तरह भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हम वो बाज़ का जो है किसान कहता है ये तो मेरा इतना खर्चा हो जाए तो इसको मैं रूटावेट करूँगा या इसको जो डिश चलाऊँगा तो मेरा तो खर्चा हो जाएगा। वो खर्चा जो है वो यकीनन आपको उसका बदला मिलेगा, वो आपकी ज़मीन के अंदर जाएगा, आपकी खादों की ज़रूरियात कमी होगी वो उससे यकीनन पूरा हो जाएगा और वो देर तक उसका असर रहेगा आपकी ज़मीन में। तो इसलिए एक तो जितने भी आपके क्रॉप रेजिड्यूज हैं या बाकियात हैं फसलों की, उनको ज़रूर ज़मीन के अंदर मिक्स करें। फिर जितनी भी ये रूढ़ी है आपको मिलती है, जितनी भी मिल सके उतनी डालें। इसमें कोई यानी कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ये आपकी ज़मीन में ना सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेगी, इसमें पोटाशियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा, और जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ज़मीन में वो वापस चले जाएंगे और आस्ता आस्ता आपकी जो ज़मीन है वो दफेज होगी। तो और इसके साथ साथ जो आप नाइट्रोजन डालते हैं उसकी पौधे को यानी उसकी अवेलेबिलिटी जो है या पौधे की सलाहियत जो है ज़मीन से नाइट्रोजन लेने की वो भी बढ़ जाएगी, और जो नाइट्रोजन है उसका ज़िया भी कम होगा फ़ज़ा में, जो बाद में मौसमियाती तब्दीली का बात। तो इसलिए ये इसका बहुत ज़्यादा रवाज हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसमें भी इसके ऊपर बातें हो रही हैं। चाइना वाले जो हैं वो सारे ऑर्गेनिक मैटर की तरफ लौट रहे हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल करते रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने भी यही अब सोचा है कि ये हल नहीं है कि हम केमिकल खाते ही इस्तेमाल करते हैं, कि जहाँ उसके और नुकसानात हैं वो इकनॉमिकली हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी ज़मीनों को ज़रखेज़ बनाने के लिए आप जो रूढ़ी है या ऑर्गेनिक मैटर जहाँ से भी मिलता है आप उसको ज़रूर वहाँ पे डालें। और जो छोटा किसान है उसे चाहिए कि ज़रूर वो अपने पास जानवर रखे, अगरचे बहुत सारे लोगों ने रखे हुए हैं लेकिन जिन्होंने नहीं रखे उन्हें कुछ रखने चाहिए, ताकि वो अगर उसके 2-4 एकड़ उसकी ज़मीन है तो वो अपने जो जानवरों का गोबर वगैरह है वो उसमें डाले, और उससे जो है वो उसकी ज़मीन यकीनन ज़्यादा अरसे तक ठीक है। तो ये बात तो इसके हवाले से है जो उत्पादन खाते हैं। दूसरा जो हम प्रोजेक्ट बेसिकली ये कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन लॉसेस हैं, जो नाइट्रोजन हम फ़ज़ा में डिफरेंट तरीक़ों से जा रही है, ट्रैफिक से या हमारी जो खादों का इस्तेमाल है इंडस्ट्री से, उसको कम किस तरह किया जाए या उसके जो हमारे ऊपर असरात हैं उसको किस तरह हम कर सकें। यकीनन ज़राअत का इसमें रोल बहुत ज़्यादा है। ज़राअत का सिर्फ रोल जो है वो नाइट्रोजन की जो गैसें फ़ज़ा में जाती हैं उसके हवाले से,
लेकिन ज़ाहिर है हर किसी ने अपने हिस्से का काम करना है। हम चूँकि बैसियत रिसर्चर या जो किसान है, हमारा ज़राअत से तल्लुक़ है, तो हम इसी के हवाले से जो काम है वो करेंगे। जो ट्रैफिक वाले हैं वो उस हवाले से काम करेंगे, जो इंडस्ट्री वाले हैं वो उस हवाले से काम करेंगे। और यकीनन हम हर किसी को के ऊपर हम जोर नहीं चला सकते, हम अपने हिस्से का हमने काम करना है। तो उस हवाले से ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो है हम सिर्फ आपको कुछ बताना नहीं चाह रहे, बल्कि आपसे हम कुछ पूछना भी चाह रहे हैं, कुछ सीखना भी चाह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बाद औक़ात जो फार्मर्स हैं उनको जब चीज़ बताई जाती है, एक्सटेंशन वाला बंदा आता है, वो कहता है जी ये काम करें तो इतनी आपकी पैदावार हो जाएगी, तो हो सकता है वो किसान उससे ज़्यादा पहले ले रहा हो। तो इसलिए हमें ये चाहिए। अब एक ही गांव है, उसके अंदर एक किसान जो है वो 60 मन ले रहा है और दूसरा 30 मन भी नहीं ले रहा। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो 60 मान वाला है वो क्या कर रहा है और जो 30 मान वाला है वो क्या नहीं कर रहा है, ताकि हम सारी जो मालूमात है उनको देंगे, फिर हम उस खास गांव वालों को ये बता सकें कि आप यहाँ पे ये काम करेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी हो सकती है, आपकी नाइट्रोजन के इस्तेमाल जो है इस रेंज में आप करेंगे तो उसके नुकसान कम होंगे और आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये यकीनन 8 मुल्कों में, क्योंकि हमारी जो जियोग्राफी है वो सेम है। इंडिया के अंदर जो फार्मर है हमारी तरह के भी किसान हैं, वो कुछ किसान जो है वो हमसे ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ किसान है वो इंडिया वालों से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। इस तरह बांग्लादेश में है वो ये इसके हवाले से, जो चावल के हवाले से, फिर भूटान है, नेपाल है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि हम हर जगह से, तो ये तकरीबन 14 गांव हैं पूरे ये जनूबी एशिया से, इंडिया से इसमें 3 गांव हैं और 3 गांव उसमें बांग्लादेश से हैं, 2 नेपाल से हैं, तीसरा 2 पाकिस्तान से हैं। तो हम सारे किसानों से मालूमात लेंगे, क्योंकि हमारी जियोग्राफी सेम है, हमारे जो काश्त करने के जो तरीके हैं वो सेम हैं। तो हम देख सकें कि कहाँ से पे क्या अच्छा काम हो रहा है प्रैक्टिकल, जो हम एक जगह से हम दूसरी जगह पे वो कर सकें, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम नाइट्रोजन का सही इस्तेमाल करें, अंधाधुंध इस्तेमाल ना हो, और जहाँ पे कम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे सही मतवाज़न इस्तेमाल। तो इस हवाले से हमारा ये प्रोजेक्ट है। इसमें हमें इसका ये फ़ायदा भी ये था कि पढ़े लिखे लोग हैं और ये जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इनका तल्लुक़ भी है। फिर हम चूँकि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में हैं तो हमारे लिए आसान भी है कि हम यहाँ आके काम कर सकते हैं। और अभी तक जितनी दफ़ा भी हम आए हैं हमें अच्छा रिस्पांस भी मिला है लोगों का, और ये भी हमारे लिए एक बड़ा खुशाइंद है। इसमें जो मोहम्मद हाँ साहब बता रहे थे कि हमने 100 फार्मर का हमने सर्वे किया था, उसमें से हमने 40 सेलेक्ट किए। इसकी सिलेक्शन कोई मेरिट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि ये अच्छा किसान है या ये अच्छा नहीं है। उसमें हमने 4 ग्रुप उसके बनाए थे, जितने भी हमने, उसमें जितनी ज़मीन है, फर्ज किया कि 5 एकड़ वालों का एक ग्रुप है, 7 एकड़ वालों का एक ग्रुप है, फिर 2 एकड़ या 3 एकड़ वालों का ग्रुप है, और फिर हर ग्रुप से हमने फिर 10-10 बंदे जो हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं। मसलन वो बटन एक दबा दिया, जो आ गया नाम उसी से हमने सिलेक्ट किया, ताकि हमारी बायसनेस ना हो कि ये जी हमारा कुछ जानने वाला है और ये नहीं जानने वाला। वो इसलिए किए हैं कि जो 12 एकड़ वाला किसान है और जो 2 एकड़ वाला है, दोनों के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या डाल रहा है ज़मीन में, वो क्या नहीं डाल रहा। फिर एक किसान है उसके पास 10 जानवर हैं और एक के पास नहीं है जानवर, तो दोनों का तरीका मुख्तलिफ है। इसलिए हमने हर तरह के किसान से हमने जो ग्रुप से हमने किसान सेलेक्ट किए। इसका मकसद ये है कि हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी पैदावार है, वो नाइट्रोजन डाल रहे हैं तो किस तरह डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, ताकि हमें
پتہ چلے کہ اگر یہ کام کریں تو جو فارمر ہے اس کی یہ پیداوار ہوتی ہے، اگر یہ نہ کرے تو اس کی کتنی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے، اس پہ جو ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں پروجیکٹ میں، وہ یہاں پہ آئیں گے آپ کے پاس اور آپ سے انفارمیشن لیں گے۔ وہ یقیناً آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے ایک فارم فل کرنے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کائنڈلی آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو صحیح آپ کی معلومات ہیں وہ دیں، کیونکہ یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ اس میں نہ تو کوئی گورنمنٹ کا کوئی رول ہے، یہ سمجھیں کہ ہمارا پرائیویٹ یونیورسٹی کا ہے کہ ایک سیکھنے کے لیے، کیونکہ یونیورسٹی کا تعلق ہمیشہ سیکھنے سے سکھانے سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ بالکل صحیح انفارمیشن دیں، اور تاکہ ہم اس کے نتیجے میں جو بھی ہم ریکمنڈیشن بنائیں اس گاؤں کے لیے وہ یقیناً فائدہ مند ہو۔ اگر اس میں جو آپ معلومات دیں گے اس میں کوئی غلطی ہوگی، یا بعض اوقات جو کسان ہے وہ کہتا ہے جی میں اپنے بتانے کے لیے جی میں 60 من میری پیداوار ہے، جی میں کیوں کم بتاؤں۔ یا ایک فارمر اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں یو کے میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ انڈیا سے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو کسان ہے نا وہ ہمیشہ کم، ہمیں اگر وہ 60 من لے رہا ہے تو وہ کہے گا میں 30 من لے رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے پوچھا کس لیے، وہ کہتے ہیں جی وہ اس لیے کہ وہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فنڈس لیں۔ تو میں نے کہا ہمارے تو ویسے کسان اگر وہ 30 لے رہا ہے وہ کہتا ہے میں 60 من لے رہا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے کہ میت بہت اچھی، میری تو کاشتکاری بہت اچھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہ زیادہ چاہیے نہ کم، جتنی آپ لے رہے ہیں پیداوار، جو بھی اس میں معلومات ہیں آپ دے دیں، وہ سیکرٹ ہے، وہ ہمارے پاس امانت ہے آپ کی، اس میں کوئی ایسی پرائیویٹ چیز نہیں ہے۔ صرف یہی ہے کہ آپ نے جانور کتنے رکھے ہوئے ہیں، آپ کھادیں ڈالتے ہیں، آپ آرگینک میٹر ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے، کون کون سی کھادیں آپ استعمال کرتے ہیں، فاسفورس بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اس سے جو آپ ہمیں پیداوار بتائیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ زیادہ فائدہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کجی آئے گی کہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے معلومات، تو پھر وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا، اور اس کی بیس کے اوپر ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے حوالے سے صحیح انفارمیشن دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اکٹھے مل کے چلائیں گے۔ اس میں ہم سب بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہیں پہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کہیں پہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ میں نے سٹارٹ میں اس لیے کہا ہے کہ ہر طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا کو تباہ کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو سنوارنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ اگر ان میں اتار چڑھاؤ کمی بیشی آتی رہتی ہے، اگر زیادہ لوگ اچھائی کرنے والے ہوں گے تو معاشرہ اچھا لگے گا، اگر زیادہ برائی کرنے والے ہوں گے تو معاشرہ برا ہوگا۔ آپ ڈاکوؤں کے گاؤں میں بھی چلے جائیں جو مشہور ہیں کہ یہ یہاں پہ ڈاکو بہت ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ ان کی کثرت ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس لحاظ سے مشہور ہو گئے۔ تو اس لیے ہم صرف یہ سیکھنے سکھانے کے لیے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسی اچھی چیز بنا لیں جو مستقبل میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کام کریں تو اس سے ہماری جو فصلیں ہیں، جو زمین ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو پرفارما ہے اس کی ڈیٹیل تو آپ کو رضوان، باقی کوئی کوشچن ہوں گے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی، اس کے مزید جو ہے وہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ باقی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جیسے کہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں ہم ایک فارم جو ہے وہ فل کروائیں گے۔ وہ فارم کیا ہے، اس میں کیا فل کرنا ہے، کون کون سی جو آپ کی معلومات ہیں وہ ہمیں درکار ہے، اس سب کے بارے میں آپ کو تفصیلات جو ہے وہ رضوان صاحب بتائیں گے کہ وہ فارم کیا ہے، اور وہ کون سے وہ 40 فارمر ہیں یا کسان ہیں جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے، تو اس سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو رضوان صاحب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں
आप सबका कि आप हमारे दावत पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से मेरा कल फ़ोन पे रब्ता हुआ है, आज भी हुआ है, और राणा मखलूक साहब ने भी बहुत सारे लोगों से रब्ता किया है, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आप सब वाकिफ़ होंगे, मैं आप सबसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, मेरे साथ एक लड़का और भी था, अहमद मुस्तफा, तो हम सर्वे ज़ीरो करने आए थे आपके पास। तो वो सर्वे हमने आलमोस्ट, जैसे सर ने बताया, वो 109 लोग थे हमने टोटल सर्वे किया। उसमें से फिर ये जो सर ने जैसे बताया कि उन्होंने वो सिलेक्शन की है, वो डिफरेंट ग्रुप्स बना के, और जो है ना उसमें वो उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, कितना उनके पास रकबा है, वो कास्ट कर रहे हैं। तो उसमें से जो है ना वो 40 लोगों को सिलेक्ट किया, जिनको हमने कोशिश की है कि वो सारे आज जो है ना वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब हम जो है ना इसके बाद सर्वे 1 होगा, यानी कि अब जो पहले फार्म था ना उस पर तो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी कि नाम, बल्दियत, फ़ोन नंबर और रकबा कितना है, तो जानवर अगर है तो केड़े ने, कोई बंदा कोरोना तो मुतासर तो नहीं है। तो सर्वे ज़ीरो जो था ना वो इस तरह का था, सिर्फ चंद क्वेश्चन थे। लेकिन जो सर्वे 1 है वो थोड़ा सा डिटेल सर्वे है। जैसे सर ने बताया कि वो थोड़ा सा हमें आप लोगों का टाइम चाहिए होगा, थोड़ा सा जो है वो आप जो है हमें थोड़ा सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है, वो बेसिक से क्वेश्चन है जो मैं आपको थोड़े से बता भी दूँगा अभी। तो वो जो है ना वो हमने अभी स्टार्ट करना है। उसमें मसला ये है कि जैसे आप बिजाई किस वक्त करते हैं, कौन सी फसल लगाते हैं, जानवर हैं तो कितने हैं, उनको वो चराते हैं आप फसलों में कि नहीं चराते, तो उनका जो वेस्ट है यानी कि जो है रूढ़ी है वो आप उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर यूरिया डालते हैं तो कितने बैग डालते हैं और किस टाइम डालते हैं, DAP है तो वो कितनी डालते हैं, उसका बैग कितने kg का होता है, और इसके अलावा आप कोई हल चलाते हैं या जो है ना कोई स्प्रे वगैरह करते हैं तो ये किस किस्म का है। उसमें ज़रा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं है कि, लेकिन यह कि हम कोशिश करेंगे कि वो आपको जो है ना आसानी के साथ वो सारा सर्वे कंप्लीट करें। तो ये अब हम इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर देंगे। जो है हम इंडिविजुअली जैसे पहले हर किसी के घर जा के हमने सर्वे किया था वो 109 लोगों का, इसी तरह हम सर्वे 1 जो ये 40 लोगों की लिस्ट है जिनमें बहुत सारे यहाँ पे मौजूद भी हैं, तो ये अब हम उनके साथ जो है ना ये सर्वे 1 जो है ना कंप्लीट। तो चलिए इसको बता दें। चलें ये हम जो है ना आप जिनकी तो अटेंडेंस उन्होंने बता दें किस तरह आप करेंगे, एक दो करके आप पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो इसका तरीक़ेकार हम ऐसे रखेंगे कि हम फ़ोन पे रब्ता कर लेंगे, मतलब ये जो लिस्ट है इसके मुताबिक वो उस बंदे के साथ या उस किसान के साथ हम जो है ना वो टाइम फिक्स कर लेंगे ताकि उसका वक्त भी ज़ाया ना और हमें भी जो है ना वो आने में कोई मुश्किल ना हो। मतलब हर किसी की अपनी मसरूफियात होती है ना, वो काम करे तो हम उसको काम करते हुए ना रोक सकते, वो काम छोड़ के आके हमारा ये सर्वे पूरा करें। तो हम उसके साथ टाइम फिक्स कर लेंगे कि ये टाइम इस दिन हम आएँगे, तो वो हमें टाइम दे देगा, तो हम आके जो है ना वो सर्वे, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मैंने बताया टाइम ज़्यादा लगना है, 40-45 मिनट शायद लगें। तो पहले तो वो था कि हम वो प्रिंट निकाल के ले आए थे, फॉर्म फिल करवा लिए थे, तो ये अब हमने सारा ऑनलाइन करना है। तो हम वो टैब वगैरह अपने लेके आएंगे जो भी हमारे हैं हमारे पास, तो हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन ही भेज दी। इसलिए आप लोगों का जो है ना वो तावन दरकार होगा। मुझे वैसे कल बहुत खुशी हुई थी कि मैंने जिस बंदे को भी फ़ोन किया उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया कि जी हम ज़रूर आएँगे, ये जो है ना हमारे मसले मसाइल जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि जो है ना ये हमारा सिलसिला ऐसे ही चलेगा और इस गांव को जो है हम बाकी एक मॉडल विलेज के तौर पे जो है ना वो मुतारफ़ कराएंगे कि जी हमने फ़लाँ गांव में ये काम किया है, तो वहाँ से हमें ये नताइज मिले और सब जो है ना हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से चले हैं, कोई हमें वहाँ पे मसला दरपेश नहीं है। तो ये जो है ना हमारा फ़र्ज़ है, मैं इस प्रोजेक्ट में रिसर्च ऑफिसर हूँ और हमारा भी फ़र्ज़ है क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मेरा जो फ़र्ज़ है वो हम पूरा करेंगे ज़रूर, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी हमारे साथ जो है ना वो तावन करेंगे और हम मिल के चलेंगे। तो मैं फिर से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, और ख़ास तौर पे राणा मतलूब साहब, लंबरदार साहब का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है जो है ना शुरू से लेके अब तक जो है ना वो हमारे साथ चले हैं, और उम्मीद है कि आइंदा भी उनके साथ ये सिलसिला जारी हो सकता है। तो अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आप पूछना चाहेंगे वो अब आप पूछ सकते हैं। वो बहुत शुक्रिया। बस केड़ी थोड़ी ही नहीं यार कर देखो ते
ज़्यादा है। ये हमारे साथ जो टीम आई हुई है, ये एक सावी जो ऐप है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन फार्मर्स को, किसानों को मालूमात देने के लिए मौसम के मतलब के इस इलाके में अब बारिशें कब होंगी, जो दर्जा क्या है, फिर उसके बाद यह है कि सबसे अच्छा बिजाई का वक्त कौन सा है, और इसके अलावा बाकी जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो इस ऐप के अंदर मौजूद है। वो आसानी के साथ जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो ले लेंगे। और स्पेशली ये इसलिए कि ये नाइट्रोजन के हवाले से मैं खुद भी इनका एडवाइज़र हूँ कि नाइट्रोजन को हम किस तरह उसकी मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करके हम उसको उसके जो लासेस हैं उसको भी कम कर सकते हैं और उसका जो बेनिफिट है वो बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये टीम है, ये मिस सायरा हैं, ये हमारी यहाँ की स्टूडेंट हैं, जिसने मास्टर कर लिया है और अब इसमें इस जो सावी है इसके साथ ये काम कर रही हैं। और ये बड़ा एक मुनफरद और इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई आप समझें कि कोई फंडिंग नहीं है, ये एक सेल्फ मेड है जो सिर्फ फार्मर्स की भलाई के लिए। और अगर ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो कि अभी तक हमारे जो फीडबैक है बहुत अच्छा है, ये कामयाब हो जाता है तो किसान के लिए बड़ी आसानी होगी कि वो टेलीफोन के ऊपर इवन उसको ये भी पता चल जाएगा कि आपने अपनी फसल में नाइट्रोजन कब डालना, क्योंकि उसका जो फार्म है वो इस ऐप के अंदर आ जाएगा और आपको वो इंफॉर्मेशन आती रहती रहेगी। तो बाकी थोड़ी बहुत डिटेल उसके बारे में ये आपको बता देंगी और फिर आपने सिर्फ वो ऐप करनी है मेरा, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जो है आपको। तो जो मिस सायरा है ये इसके बारे में आपको थोड़ी सी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा सईद है। मैं सावी एक गैर जानिबदार फार्म एडवाइजरी इदारा है। ये भी एक यूके बेस्ड अदारा है। इसमें इसके एक शोबा नॉलेज सेंटर की सरबराह हूँ। सावी क्या है? गैर जानिबदार अदारा है, इसमें कोई बाइसनेस नहीं है। ये सिर्फ ये कि अपने किसानों की भलाई के लिए जो है वो ज़राअत के और गवर्नमेंट के डिफरेंट जो मुख्तलिफ महकमात हैं उनके साथ मिलके काम कर रही है कि अपने फार्मर्स को, अपने किसानों को ये रहनुमाई दे सके कि वो किस तरीके से बेहतर इक़दाम करके अपनी पैदावार को जो है वो बढ़ा सके और अच्छी पैदावार हासिल कर सके और अपना अच्छा जो है वो इनकम जो है उसे हासिल कर सके। बेसिकली सावी जो हमने सावी मोबाइल ऐप बनाई है, ये क्या करिए, इसमें यह कि बीज की बुवाई से लेके बीज की कटाई तक, उसके मार्केट तक जाने तक सारी A to Z जो है वो मालूमात जो हम अपने किसानों को दे रहे हैं सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन में। आपने मोबाइल ऐप जो है वो अपने मोबाइल में जो है उसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जाके, और आपको आपकी जेब में पूरी ज़राअत है। आप ऐप खोलेंगे और आप किसी भी मसले के मुतालिक जो है वो रहनुमाई हासिल कर लेंगे। जैसे सर ने बताया कि नाइट्रोजन के बारे में सर ने जितनी भी मालूमात दी हैं कि नाइट्रोजन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बेहतर सोर्स कौन से हैं और इसके इस्तेमाल करने का तरीका कौन सा है। हमारी हर फसल की जो खाद की ज़रूरत है वो मुख्तलिफ है। अगर हम गंदम उगा रहे हैं तो गंदम की जो फसल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो ज़रूरत है वो मुख्तलिफ है। चावल की फसल की मुख्तलिफ है, कमाद की फसल की मुख्तलिफ है। हम एक ही तनासुब में जो है वो खाद, अगर हम यूरिया, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूँ कि अगर हम एक बोरी यूरिया जो है वो कमाद में डालें तो हम एक यूरिया ही गंदम में या चावल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत अलग होगी। तो ये सारी रहनुमाई जो है ये आपको सावी ऐप पे मिल जाएगी। सावी ऐप का एक फीचर है नॉलेज सेंटर, मरकज़ इल्म। वहाँ पे आपको छोटी छोटी, हम लोगों ने ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े किताब के जो हम लिखते थे उसमें किसानों को पढ़ने में भी मुश्किल आती है और किसान पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए उनकी रहनुमाई के लिए हमने एक 2 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, छोटी छोटी क्लिप्स है छोटे छोटे कि जिसमें हम बता सकते हैं जिसमें बीज की बुवाई कैसे करनी है, ज़मीन आपकी कौन सी फसल के लिए कौन सी ज़मीन अच्छी है जिसमें आपकी पैदावार अच्छी आएगी, आपके आपाशी जो है वो कैसे किस कुरानिये में करनी है, किस वक्त करनी है और किस तरीके से करनी है। उसके अलावा बुवाई जो हम बीज की बताते हैं कि छट्टे से करनी है, ड्रिल से करनी है या उसको पटरियों पे काट करना है या खेलियों पे काट करना है। हर फसल की के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई जो है वो इन वीडियोस की शक्ल में है कि किसान को अगर उसको खाद के बारे में कोई रहनुमाई चाहिए तो वो ऐप खोलेगा, अगर गंदम के बारे में है तो गंदम की फसल है उसके ऊपर क्लिक करेगा और वहाँ पे जाके आपने खाद वाली जो वीडियो है उसको चला के देख लेगा और उसको रहनुमाई
रहनुमाई हासिल हो जाएगी कि मैंने अपनी फसल में खाद कब डालनी है, कितनी डालनी है और कैसे डालनी है। सारी मुकम्मल रहनुमाई जो है वो आपको इस ऐप के ज़रिए मिल जाएगी। जैसे कि सर ने नाइट्रोजन का बताया कि नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो हमने कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो इस बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई जो है वो आपको इस ऐप से मिल जाएगी। ज़ाहिर है अगर हमें कोई रहनुमाई चाहिए तो सर्वे जो होते हैं वो कभी महीने में सर्वे होता है, कभी 15 दिन में सर्वे होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं या उनको खुद जाना पड़ता है अदारों में कि वो जाके वहाँ पे अपनी मालूमात हासिल करें। लेकिन ये ऐप से आपको ये फ़ायदा हो गया कि आपकी जेब में है, आप जब आपको रहनुमाई की ज़रूरत होगी आप ऐप खोलेंगे तो आप उसमें जाके अपने मुतल्लिका जो आपको मालूमात चाहिए आपको वो हासिल हो जाएंगी। इसके अलावा हमारी ऐप का जो एक और बहुत ही अहम और जदीद फीचर है वो माई फार्म का है, मेरे फार्म का है। उसमें क्या करेंगे कि जब किसान भाई अपने खेत की और अपनी फसलों की मालूमात सारी उसमें दर्ज करेंगे तो किसान भाइयों को जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी फसल की सेहत के बारे में मालूम हो जाएगा। ये एक जदीद फीचर है जिसमें आपको घर बैठे आपको कहीं मुआयने के लिए नहीं लेके जानी पड़ेगी अपनी फसल कि बता दें मेरी फसल जो है वो कितनी अच्छी है, उसकी सेहत कैसी है, ये इसमें पानी की या खाद की कमी है तो वो बता दें। हमारे जब आप अपना खेत उसमें ऐड कर देंगे, उसकी मालूमात आप जो है वो शामिल कर देंगे तो आपको फसल की सेहत के बारे में पता चल जाएगा। फसल की सेहत कैसे पता चलेगी आपको कि हमने उस फार्म में मुख्तलिफ रंगों से जो है वो उसको निशानदही की है। अगर आपकी मैं अगर मिसाल दूँ, मेरी ही 2 एकड़ ज़मीन है, मैंने अपना 2 एकड़ का खेत जो है उसकी मालूमात जो है वो ऐप में डाल दी है मेरे फार्म वाले ऑप्शन पे जाके। अब मुझे जो मेरे 2 एकड़ में जो हरा रंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि ये फसल मेरी अच्छी है, इसको पानी की खाद की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, इसको हम जितनी मिकदार में दे रहे हैं वो अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा साइड पे है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फसल जो है वो पीली है या गुलाबी रंग जो है वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मेरी फसल कमज़ोर है, इसको पानी की या खाद की ज़रूरत है। या हो सकता है कि इस पर किसी कीड़े का या किसी बीमारी का हमला हो। जब बीमारी या जो कोई भी कीड़ा जो है वो जब हमला करता है तो वो पूरी फसल, अगर मेरी 2 एकड़ पे मैंने गंदम लगाई है तो वो 2 एकड़ पे हमला नहीं करेगा, वो थोड़े हिस्से पे हमला होता है। आपको भी पता है कि कोई भी कीड़ा जो अगर अटैक कर रहा है तो वो थोड़े से हिस्से पे ही अटैक कर रहा है। तो हमें क्या करेगा कि वो माई फार्म के पोर्शन के फीचर से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी सारी फसल को हमने जो है वो उसमें स्प्रे नहीं करना है उस कीड़े के लिए या उस बीमारी के लिए। जिस हिस्से में फसल के जिस हिस्से में उस बीमारी ने अटैक किया है, उस बीमारी का हमला हुआ है, हमें सिर्फ उसी का तदारुक करना, उसी को कंट्रोल करना है और वहाँ पे ही उसकी मुतल्लिका जो है वो स्प्रे करनी है। अब ये है कि हमारे पे जो कौन सी फसल पे कौन सी बीमारियां अटैक कर रही हैं या कौन से कीड़े जो है वो हमला कर रहे हैं, इन सब की मालूमात भी जो है वो इन छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में हमारे नॉलेज सेंटर के जो पोर्शन है उसमें दी हुई हैं। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये वाली बीमारी जो है, जैसे कि फसल अगर आपको लग रहा है कि मेरी फसल जो है ये गंदम की फसल है, उस पर ये जो है वो पूरी हो रही है तो इस पर ये कुंगी का अटैक है या कोई और या करनाल बंट है या कोई और है, उसके लिए भी आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। गंदम वाला पोर्शन खोलेंगे उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी कि गंदम की फसल पे कौन कौन सी बीमारी अटैक कर रही है और इस बीमारी का क्या इलाज है। हम लोग अक्सर डीलर्स के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें ये होता है कि जो स्प्रे मिलता है हम ला के कर देते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो स्प्रे उससे रेलिवेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी कुंगी के लिए कौन सा स्प्रे करना है, करनाल बंट के लिए कौन सा स्प्रे करना है और अगर हमारे पास गुलाबी सुंडी का हमला हो गया तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करना है और अगर कोई लश्करी सुंडी का हमला हो गया तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करना है। स्प्रे तो करना है, हमने बचाना तो है, लेकिन सही स्प्रे का जो इस्तेमाल है वो एक तो ये कि हमले को भी कंट्रोल करेगा और नुकसान भी कम से कम होगा। इसी तरह आगे हमारे आपाशी का बताया गया। आपाशी में भी यही है कि हमारी फसल ज़मीन जो हमारी फसल है उसको कितनी आपाशी की ज़रूरत है और किस तरह ज़रूरत है। अब अक्सर हम करते हैं कि हमारी जो फसल होती है उसको कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें ये होता है कि जैसे जैसे जिस किसान के हिस्से में पानी आता है वो उसी तरीके से पानी लगा देता है कि 15 दिन 20 दिन बाद बारी आनी है तो अभी सारा पानी लगा दो। उससे क्या होता है कि जो फ़ायदा तो जो होना होता है उसके बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है हमारी फसल को ज़्यादा पानी की वजह से। तो फसल की आपाशी कैसे करनी है और उसका दौरानिया टेस्ट के बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई जो है वो सारी ऐप से आपको मिल जाएगी।
सावी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इसमें बस अपना आपने नंबर दर्ज करना है और आपको ये ऐप की जो सारी सहूलियात है उससे आप मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें हमारा कम्युनिटी का एक पेज है, एक फीचर भी है जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप बराह रास्त अपने सवालात जो है वो इस ऐप में पूछ सकते हैं। हमारे माहिरीन ज़राअत हैं, सर वकील साहब भी हैं, इनकी मालूमात को ही हम ऐसे वीडियोस की शक्ल में और ऐसे आप तक पहुंचाते हैं ताकि किसान जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। तो उसमें यह कि आप अपनी ऑडियो भी भेज सकते हैं, आप अपना हमें वॉइस नोट भी कर सकते हैं कि जी जनाब ये मेरी फसल है, इसको ये मसला है, इसका क्या हल है। उसके अलावा आप अपनी फसल की तस्वीर खींच के भी जो है वो वहाँ पे भेज सकते हैं ऐप में कि ये मेरी फसल इस तरह की, इसके लिए कोई हल बताएं या कोई भी इससे फसलों से रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अब हमारा जो सावी है वो एक कंपटीशन करवा रहा है, एक मुकाबला करवा रहा है सारे पाकिस्तान भर से सारे काश्तकारों के दरमियान। हम 9 जो मेजर फसलें हैं, बड़ी फसलें हैं, कपास, गन्ना, मकई, चावल, गंदम, सरसों, सूरजमुखी और अब उसके अलावा हम पठवार के इलाकों से जैतून को भी शामिल कर रहे हैं। इन तमाम फसलों का हम पैदावारी मुकाबला करवा रहे हैं। ये 18 दिसंबर को हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो इसमें इसके रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है ये हमारी टीम ने आपको जो है वो दे दी है पेज, इस पर लिखा हुआ है कि आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारी ऐप पे भी आप जाके अपना नाम, अपना नंबर, अपने इलाका के आप कहाँ से हैं, आपका टोटल रकबा कितना और आपने कौन सी फसल काश्त की है और आप किस फसल के लिए उस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये आपने सारी डिटेल जो अपनी बता देनी है। और इसमें शिरकत, इसमें अपना इंदराज करवाने की, मुकाबले में अपने रजिस्ट्रेशन करवाने की आखिरी तारीख जो है वो 18 जनवरी है। 18 जनवरी से पहले अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस मुकाबले में हिस्सा लें। इस मुकाबले का मकसद यही है कि हम किसानों में जो है वो जैसे किसान ने बताया कि हमारा एक किसान 60 एकड़ ले रहा है तो दूसरा 30 एकड़ ले रहा है, तो इस मुकाबले के ज़रिए हम क्या करेंगे कि वो 60 एकड़ वाले जो किसान है वो कौन सी 60 मन वाला जो किसान है वो कौन सी ऐसी तदाबीर कर रहा है, कौन सी ऐसे टेक्निक यूज़ कर रहा है कि जिससे उसकी फसल अच्छी आई है तो बाकियों की क्यों नहीं आ सकती। इस पैदावारी मुकाबले से हम ये जो है मालूमात जो है वो सब में जो है वो बांट सकेंगे, शेयर कर सकेंगे कि वो उनकी पैदावार भी जो है वो अच्छी हो। और इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप सब लोग ऐप को भी इंस्टॉल करें और उस पैदावारी मुकाबले में भी ज़रूर शिरकत करें। आपके पास वो सारे पॉम्पलेट्स आ गए हैं, आप उससे हमारा जो कंपनी का नंबर है वो लिखा हुआ है, उसमें आप अपना मुकाबले के लिए अपना इंदराज करवा सकते हैं और उसमें शिरकत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको। इसके मतलब अब जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस सेशन के मतलब जो भी सवालात हैं, अब हम सवाल जो आपका सेशन शुरू करते हैं, आपको जो भी सवालात हैं वो आप हमारे सर से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सर किसी ने सवाल पूछना है तो वो अपना हाथ खड़ा कर ले, फिर उस तक माइक पहुंचा देते हैं। सर ये मसला ये हो रहा है कि पिछले 4-5 साल से ना ये जो गंदम के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसकी 30 से 35 मन पैदावार फी एकड़ आ रही है, जबकि इससे पहले खाद भी कम डालते थे और पैदावार 45 से 50 मन थी। अब हम लोग स्प्रे भी करते हैं, खाद भी ज़्यादा डालते हैं, पानी भी 1-2 ज़्यादा लगाते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? खाद जाली आ रही है या कोई बीज में खर्चा पहले से ज़्यादा कर रहे हैं और पैदावार कम हो रही है? जी ये यकीनन ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है कि मैंने आपको स्टार्ट में या आपने जो शुरू में ये बताया था कि ज़मीनें हमारी जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। कि पहले नाइट्रोजन कम था, फिर फास्फोरस कम हो गया, पोटाश कम हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक तो ये कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा उसके ऊपर अखराजात। अब ज़मीन अगर खुराक के लिए कमज़ोर है तो वो कमज़ोर फसल होगी, उसके ऊपर बीमारियां भी ज़्यादा अटैक करेंगी। इसलिए एक तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी ज़मीनें दिन ब दिन जो है, ये सिर्फ आपके यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में यही मसला है। पूरे पंजाब में आप कहीं पे जाएँ वो यही कहते हैं जी फसल देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन उसकी पैदावार नहीं है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारी ज़मीनें जो हैं बहुत कमज़ोर हैं। हम इसका इस्तेमाल बेतहाशा कर, हम 2-2, 3-3 फसलें उससे लेते हैं, उसको देते कुछ भी नहीं है।
अब सिर्फ वो खाद के दानों से तो नहीं उसने सारा कुछ ले लिया। तो इसलिए मैंने इसमें आपको ये राय दी है कि कोशिश करें कि अपनी ज़मीन में जितना भी ये कुदरती जो नामियाती मादा है वो आप उसमें डालें ताकि आपकी ज़मीन जो है वो स्ट्रांग है। अब ये खादों के डालने से जो पैदावार आती है वो उसी तरह जिस तरह आप कहते हैं जी वो मम्मी डैडी बच्चा है जी वो वज़न जरा बढ़ गया है लेकिन वो अंदर जान कोई तो वो उसने वो बर्गर खा के या जो ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें फौरी एनर्जी वाली खा के तो उसने वो जिस्म को मोटा तो कर लिया लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है। तो हमारी ज़मीनों की भी अब यही हालत हो चुकी है। और दूसरा इसमें जो पिछले कुछ सालों से ये भी आया कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है मतलब एक साल में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था कि वो टेम्परेचर हाई हो गया था, इसका पॉलिनेशन का इशू हुआ था, मेज़ में भी मकई में भी एक दफ़ा इस तरह का इशू हो गया। तो दूसरा जो इसका फैक्टर है वो ये है कि जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं इसके बारे में। अब मौसमियाती तब्दीली जो है इसके हवाले से अभी इसी साल अक्टूबर में पूरी दुनिया यूके में इकट्ठी हुई तो पाकिस्तान से भी गए हुए थे कि हम इसको किस तरह कम करें, क्योंकि ये जो तब्दीली हो रही है ये हमारी वजह से हो रही है। हम जो ज़मीन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, लड़ाइयाँ जंगें हो रही हैं, जो ट्रैफिक चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, उसकी वजह से हो रही है। उसमें एक पार्ट जो है ये हमारा प्रोजेक्ट भी है। हमारे जो प्रोजेक्ट का मेन लीडर था वो भी वहाँ पे गया हुआ था क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से भी मौसमियाती तब्दीली जो नाइट्रोजन ज़ाया होके जा रही है उसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली है, ताकि हम यहाँ पे इसको कंट्रोल करें, इंडस्ट्री वाले वहाँ पे करें और इस तरह जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो उसका असर कम करें। तो इसकी यही दो मेन रीज़न हो सकती हैं। इसके अलावा तो यकीनन हमारा जो किसान है वो बड़ा मेहनती है, वो पैसा भी अब ज़्यादा खर्च करता है, मेहनत भी ज़्यादा करता है, लेकिन इशू ये है कि पैदावार कम डॉक्टर साहब जगह परसन दी ढाइयां विचों दो मंजियां तीन मंजियां की जगह जी बूटा थले कोई शह खा जाती है तो वो खाली कर दी है, एक लौ गड्डी का मगरों खाली हो जाती है जगह, वह की मकसद है लूसन का परसन का पिछौरी परसन देखो जे वो थोड़ा जहा हिस्सा है ना वो कोई यही हो सकता है कोई बीमारी आ गई है या कोई किलों को पै गई है और कीमक है या दूसरा हो सकता है कि वो जमीन बाहर जगह तो उसको कलर आ गया, वो कलर की वजह तो भी वो जड़ा जड़ियाँ ने वो खराब हो काशमी के बूटे में रह जाते परसन के जेडे खत्म हो जाते वो फिर वो बीमारी है वो जो बी है ना बेसिकली ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲਾਓ ਵੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਈ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ तो इस वजह तो वो बी जड़े ना अच्छी नस्ल का अगर बी होएगा हो सकता है वो कमी आ जाए जिस तरह बच्ची ने दसिया वा ना कि वो जी ऐप का जो लिंक दिता हुआ अगर तुम फोटो खिंच के तो उत्थे किसी को अपलोड करा दो ना तो फिर तुहानू सही वो जो हल है वो दसिया जा सकता क्योंकि बगैर वेख्या तो फिर वो एवं तुक्का ही है तो अगर तो फोटो को खिंच के उत्थे अपलोड कर दे तो फिर वो फायदा होगा मैं जवाब उत्थे कीता इन्हां दे बेटे दा हाँ कोई पढ़ा लिखा जो बच्चा है वो फोटो खींच के अपलोड करे तो इंशाल्लाह उसका जवाब उन्हें मिल जाएगा। दूसरा मैं अपनी गुफ्तगू भूल गया थी राणा मसरूफ साहब ने शुरू तो ही साडा बहुत साथ दिता है और हमेशा वो मसरूफ भी यकीनन काफ़ी ज़्यादा होंगे ने और फौरी तौर पर वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं और टाइम भी देते हैं तो मैं वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मशहूर हाँ और सारा जो अरेंजमेंट करने में भी उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प कर अल्लाह ताला उन्होंने जज़ाए खैर दे और उन्होंने रिलेटेड तो यकीनन वो भी लोग काम कर रहे हैं नवी फसल आ भी रही हैं लेकिन नवी फसल जो भी आएगी वो मार्केट जो इशू
اگر وہ مارکیٹ نہیں ہے مثلا کلونجی ایک جگہ تے ایک بندے نے لائی انہیں وہ بہت اچھی کلونجی تھی لیکن وہ لین والے کوئی نہیں. پھر ایک جگہ تے مجھے یاد ہے آج تو کوئی 15-20 سال پہلا ایک بندے نے جوجوبا لا دی. اب جوجوبا بڑی مہنگی فصل ہے, وہ ہے کاسمیٹک انہیں لا دے لی مظفر گڑھ والی سائڈ وہ جوجوبا لین والے کوئی نہیں. اس واسطے وہ بڑا یعنی کہ ایک ٹیکنیکل کام ہے, تسی فارمر نو ایویں نہیں اسی گائیڈ کر سکتے نا وہ واسطے جن دیر تک مارکیٹ نہ ہو. لیکن اس تو علاوہ تھوڑا کوشچن اس لحاظ میں بہت اچھا ہے کہ اگر تسی ایکو دیاں فصلاں بار بار لاؤ گے نا تھوڑی جہڑیاں اویلیبل نے میں نے مکئی ہے تھوڑا فاڈر ہے دسن گنا ہے تسی اگر انہوں بدل بدل کے لاؤ گے وہ زمین کی جڑی ہے نا وہ طاقت وہ بھی بدے گی. اور یہ نال اگر جہاں پھلیدار فصلاں نے اگر وہ تسی لا لو وہ زمین کی طاقت ہو زیادہ بڑھتی اور اسپیشلی نائٹروجن کے والے فصلوں کا ہیر پھیر کرتے رہنا چاہیے, بالکل فکس نہیں کرنا. اگر کوئی کسان بھائی یہ جو ہم پیداواری مقابلہ کروا رہے ہیں اگر اس میں ابھی سے رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو ہماری ٹیم ہے, آپ یہاں پہ ہی اپنا نام, نمبر, پتہ, اپنی فصل اور اپنا رقبہ لکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نمبر پہ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نمبر پہ کر دیجیے گا, لیکن اگر آپ ابھی یہیں پہ ہی اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں اس مقابلے کے لیے تو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں, آپ ان کو اپنا نام وغیرہ اپنی فصل بتا سکتے ہیں اور رجسٹریشن کروا دیں. میں آپ سب کو مطلب کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس بارے میں کر رہی ہوں, کنونس کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جو اس مقابلے میں ضرور حصہ لیں. یہ بہت اچھا اور بہت اچھا ثابت ہوگا جب سال کے بعد. ہاں اس میں جیتنے والے کے لیے ہم نے انعام بھی رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. جو کسان جو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کے لیے اسناد کا بھی انتظام کیا جائے گا, ان کو سندیں بھی ملیں گی ان کی پیداوار جو ان کی اچھی آئی ہے اس کے لحاظ سے. بہت شکریہ.